Hi everyone, welcome to my channel Biology with Juhi. So in the today class, I want to discuss a very interesting topic of life process, that is nutrition. Okay. So in the last class, I had discussed the part 1 of life process. Life process is the chapter 1 of NCERT Biology class 10th. Okay. So in the last class, I had discussed in detail life process chapter number 1, that is part 1. Okay. But today I want to discuss the further topics. Okay. So in the last class, I had discussed stomata. So first of all, what is stomata? I had made a diagram in the last class. So by this structure I had discussed the stomata, but today I want to discuss the function of stomata as well as the definition. Okay. So what is stomata? Stomata, teeny pores on the surface of leaves. What is stomata? So stomata is the teeny pores on the surface of leaves. Stomata क्या होती है? It is the teeny pores. छोटे छोटे pores होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे लीव्स पर. ठीक है. जब प्लांट की लीफ को ऑब्जर्व करेंगे by the help of microscope, you can see a teeny pores on the leaves. The pores are called stomata. So stomata is the teeny pores. Now the function. So what is the function of stomata? First one is gaseous exchange. Exchange of gases oxygen oblique CO2. ठीक है. Exchange of gases oxygen oblique CO2. So why here is both oxygen and CO2? So first of all, you have to know during the process of photosynthesis, it requires carbon dioxide for the formation of glucose. You know very well, when formation of glucose in the leaves, it needed carbon dioxide because carbon dioxide have carbon. So carbon, where is carbon dioxide come from? Carbon dioxide came from human beings or animals. Okay. So animal provide carbon dioxide to the plant and plants provide oxygen to the animals. So during the breathing, when we exhale, we release CO2. Okay. So CO2 is received by the plants. CO2 is received by the plants during the process of photosynthesis. Okay. And after the process of photosynthesis, oxygen is released. You know very well, in the last class I had discussed, I had written the equation also. Okay. Oxygen is released and some amount of water also in the form of water vapor. So when oxygen is released, oxygen is taken by animals. Okay, during the breathing. So animals give carbon dioxide to the plants and oxygen is provided by plants to the animals. Okay. So gases exchange, you know very well, stomata. Stomata have both function opening and closing. So when stomata open, it takes oxygen, sorry, carbon dioxide inside. Okay. So now the exchange of gases, जब कभी भी स्टोमेटा क्या करती है, ओपन होती है, तो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है और ऑक्सीजन को, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगी और ऑक्सीजन को रिलीज करेगी. ठीक है. नाउ द लॉसेस large amount of water vapor during transpiration. So stomata loss large amount of water vapor during transpiration. So first of all, you have to know what is transpiration. So transpiration is the process by which plant leaves lost water in the form of water vapor. ठीक है. वाटर वेपर की फॉर्म में क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं. ठीक. तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट की लीफ हो गई. ठीक है. सपोज दैट इट इज लीफ and when sunlight fall on the leaves, stomata, that is small teeny pores, open. Okay. And in the plant stem, here is present xylem. In the last class I had discussed what is xylem. Xylem and phloem both are vascular bundle present on the plants. ठीक है. प्लांट्स में क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. जाइलम
क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर। हमने बताया था जैसे जाइलम जैसे जल, तो जल का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? वाटर। जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम, फ्लोएम फूड। तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? क्या ट्रांसलोकेट करेगा? फूड। ओके, सो हियर इज where xylem pulls water upside. Okay, xylem pulls water upside. Then you can see here in the leaves or water uses in photosynthesis. In which process water uses? In photosynthesis. जब प्लांट की लीफ फोटोसिंथेसिस करती है तो जो कोई भी वाटर ऊपर जाता है जाइलम के थ्रू, वो वाटर को कौन रिसीव करता है? प्लांट की लीव्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। लेकिन जो कंटिन्यू अमाउंट ऑफ कंटिन्यू वाटर क्या है? ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर क्या होगा? प्लांट के सेल्स में इकट्ठा होगा, जितना वाटर फोटोसिंथेसिस में चाहिए उतना तो उसने रिसीव कर लिया। तो डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस हुई, लेकिन जब लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है उसको क्या है कि लीफ में से बाहर निकलना है। अगर मान लीजिए सेल में ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या भर जाएगा? वाटर, तो वो जो प्लांट की लीफ होती है उनमें जो वैक्यूल होते हैं वो रैप्चर कर जाएंगे ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो प्लांट क्या हो जाएगा? प्लांट विल्ट हो जाएगा। तो प्लांट को विल्टिंग से बचाने के लिए, जैसे विल्टिंग दो केस में होती है, एक तो प्लांट के अंदर अगर पानी की कमी है, और दूसरा अगर प्लांट के अंदर वाटर की एक्सेस है। तो प्लांट के अंदर वाटर की एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए और वाटर का लेस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वाटर अगर ज्यादा अमाउंट में है तो प्लांट की जो वैक्यूल्स होती हैं सेल्स में वो रैप्चर कर जाएंगे और प्लांट्स क्या हो जाएगा? विल्ट कर जाएगा। ठीक है, उसकी जो ट्यूब्स होती है वो फट जाएंगी। तो प्लांट की के अंदर लीव्स में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा ना हो, इसीलिए वाटर को क्या होना पड़ता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकलना होता है। तो जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो इसके अंदर जो लीफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। व्हाट वी कॉल ट्रांसपिरेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जब जाइलम वाटर ऊपर तभी लेकर जाएगा जब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? वाटर की कमी है। तो वाटर का जब कंटिन्यू लॉस होगा तभी तो जाइलम पानी ऊपर लेकर जाएगा। तो ट्रांसपिरेशनल एक होता है ट्रांसपिरेशनल फोर्स। ट्रांसपिरेशन के बाद ट्रांसपिरेशन की वजह से जो फोर्स होता है लगता है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशनल फोर्स। तो ट्रांसपिरेशनल फोर्स की वजह से ही जाइलम क्या करता है? वाटर को ऊपर लेकर जाता है। ठीक है, स्टेम से होता हुआ। तो स्टोमेटा का व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन ऑब्लिक CO2। तो देखिए सिर्फ स्टोमेटा से ही नहीं, कुछ और भी पार्ट्स होते हैं जैसे लैंडसिल्स हो गया। ठीक है, इन सब पार्ट से भी क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर पूछा जाए कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होता है प्लांट में, तो बाय द स्टोमेटा। फिर सेकेंड वन इज लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, हमने बता दिया। तो जो ट्रांसपिरेशन का जो फंक्शन होता है वो भी कौन परफॉर्म करता है? स्टोमेटा। ठीक है, जब वाटर अंदर जाती है तो स्टोमेटा क्या होते हैं? टर्जिड हो जाते हैं। स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगी वैसे स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, उनको क्या हो जाएंगे? फ्लैसिड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, सो दीज आर टू नाउ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ दी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी हमने आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ाया, सो टुडे वी डिस्कस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो in the last class you know very well I had discussed autotrophs, which which one is called autotrophs? The animals which make their food, sorry, the organism which make their food by own cell, they are called autotrophs. And which organism they make when they make their food by when they depend upon another organism for their food, they are called heterotrophic animals. ठीक है, हेटरोट्रॉफिक। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक आता है होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोफिटिक, और तीसरा क्या होता है आपका? पैरासिटिक। ठीक, हेटरोट्रॉफ्स में जितने भी एनिमल्स होते हैं सब हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं दे ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स, बट except one animal that is both heterotroph and uh, that is both heterotroph and autotroph.
So you have to give the answer which animal, the name of animal which is both autotroph as well as heterotroph. Okay, in the comment box you have to give the answer. Okay, now heterotrophic nutrition. So first one is holozoic. So what is holozoic nutrition? Listen, when any organism, any animal take their food in the form of complex solid food, solid ऑब्लिक लिक्विड, जब कोई भी एनिमल अपने भोजन को सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में लेता है, कॉम्प्लेक्स सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में लेता है और उसको सिंपलर फॉर्म में बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है, दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो होलोजोइक न्यूट्रिशन. कैसे? हम लोग जो भी भोजन लेते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स फूड. जब कभी भी हमारी बॉडी में जाती है तो भोजन ये अंदर जाके क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होगा. तो डाइजेस्ट होगा तो सिंपलर फॉर्म में होगा, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा. तो हम लोग किस फॉर्म में ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. किसमें चेंज हो रहा है, सिंपलर फॉर्म में. और हम क्या ले रहे हैं, सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड. तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो अगर कोई भी एनिमल्स अपने फूड को सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में लेता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है, दे आर कॉल्ड होलोजोइक एनिमल्स. नाउ सैप्रोफिटिक. ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जो सैप्रोफिटिक होते हैं? यू नो वेरी वेल, सपोज दैट बैक्टीरिया एंड फंजाई. व्हेन यू सी एनी एनिमल इज डेड, देन द स्मेल इज, एक वहां से क्या होती है, स्मेल बाहर आने लगती है. ठीक है, तो स्मेल क्यों बाहर आने लगती है? क्योंकि उस पे क्या, कौन अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि काऊ या फिर बफेलो कहीं मर जाती है आपके आसपास, तो वहां से क्या होती है, 1-2 दिन में स्मेल आना शुरू हो जाता है. तो क्यों स्मेल आती है? क्योंकि वहां से क्या होता है कि उसके ऊपर बैक्टीरिया फंजाई लगने लगते हैं. तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्मेल प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जब उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, सॉरी, उसका जब डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगा. तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं they are depend upon dead and decaying matter. So those organism who depend upon dead and rotten matter for their food are called saprophytes. ठीक, तो ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स. ओके, सो bacteria, fungi, they all are saprophytes. Okay, now the parasites. So what is parasite? So you know very well, in the parasite there are two organisms. One is parasite, another is host. ठीक है, तो जो जो होस्ट को खाता है वो पैरासाइट है. ठीक है, और होस्ट जिसको खाया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए मॉस्किटो जो होता है वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमको मॉस्किटो बाइट होती है. तो मॉस्किटो यहाँ पे क्या है, पैरासाइट है, और हम क्या है, होस्ट हैं. ठीक है, जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है दे आर होस्ट, और जो कर रहा है दैट इज पैरासाइट. तो दो तरह के पैरासाइट होते हैं. See here, there are two types of parasite. First one is ectoparasite and second one is endoparasite. So which are called ectoparasites? जैसे कि जब कभी भी मॉस्किटो हमें काटता है तो हमारे बॉडी के अंदर जाके तो नहीं काटता, वो हमारे स्किन के ऊपर क्या करता है, बाइट करता है. तो दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट. तो मॉस्किटो क्या है, एक्टोपैरासाइट हो गया, लाइसिस हो गया. ठीक है, बेड बग्स वगैरह जो किसी भी एनिमल के ऊपर रह के उन पे क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं. ठीक है, बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट. और अगर कोई एनिमल किसी भी दूसरे एनिमल के अंदर रह के उसको नुकसान पहुंचा रहा है, आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट. सो लाइक बैक्टीरियाज, स्केरिस, ठीक है, लीवर फ्लूक, दे enter in our body and hang with the help of their suckers. ओके, वो अपने सकर्स के हेल्प से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या होते हैं, हैंग होते हैं, लटक जाते हैं, और वहां पे हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसको लेंगे. ठीक है, और अपना नंबर बढ़ाते हैं. तो क्योंकि वो हमारी बॉडी में रह के, हमारे अंदर रह के हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट. ओके, एक्टो मीन्स बॉडी के बाहर, एंडो मतलब बॉडी के अंदर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एज वेल एज endoparasaits. So these are the heterotrophic nutrition, holozoic, saprophytic, parasitic. So now we will discuss
न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी डिस्कस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो देयर आर 1 2 3 4 5 प्रोसेसेस। ओके, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? सबसे पहले जो होती हैं वो होती है इंजेशन। जैसे कि आप जब भोजन करने बैठते हैं तो अपने भोजन को जब माउथ के अंदर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड इन द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, नेक्स्ट डाइजेशन। तो जैसे ही हम भोजन को अंदर लेते हैं वैसे ही क्या होता है कि भोजन जो है वो हमारे माउथ से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होती है जो कि सैलिवा बनाती हैं। अभी उस सैलिवा में क्या क्या होता है, टाइलिन होता है, सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, तो सैलिवरी एमाइलेज का काम क्या होता है कि ये हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसका पार्शियल डाइजेशन करता है। पार्शियल मतलब बहुत ही स्लाइटली, कम अमाउंट में। पूरा डाइजेशन कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से। तो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपलर फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को किसमें चेंज करना, सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है, क्या कहलाता है आपका, डाइजेशन। ठीक, नाउ एब्जॉर्प्शन। जैसे देखिए, भोजन तो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। भोजन जब डाइजेस्ट हो गया तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। क्या हो गया, उसमें जो भी फॉर्म थे वो सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसमें चेंज हो गया, सिंपलर फॉर्म में। तो एब्जॉर्प्शन में 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, 10% जो होते हैं वो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में जो भी हमने भोजन लिया है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं 90% वो किसके सेल्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बाकी 10% जो होते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए, तो एक तो हो गया एब्जॉर्प्शन, इसमें 90% न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन। तो देखिए, जब भोजन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए गए तो ऐसा तो नहीं है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहेंगे, उनको हम दूसरे ऑर्गन्स तक भी पहुंचाएंगे। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी जो कैपिलरीज होती हैं, फूड कैपिलरीज, वो क्या करती हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, जहां भी उसकी नीड होती है तुरंत ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, तो एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है, टू कैरी आउट, क्या करना, टू कैरी आउट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स टू द अनदर ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब कि भोजन को पास आउट करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को पास आउट करना इंटेस्टाइन के बाहर। ठीक है, दे आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नाउ द इजेशन। व्हाट इज इजेशन? तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि 90% न्यूट्रिएंट्स क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं। 10% जो कि अनवांटेड है, जो हमारी बॉडी में जिसकी नीड नहीं है, उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा, एनस के थ्रू। ठीक, तो एनस से क्या होता है, इजेशन। इजेशन हमेशा किससे होता है, एनस के थ्रू। तो जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको बॉडी से क्या हो जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो एलिमिनेट करना ही क्या कहलाता है, इजेशन। ठीक है, टू एलिमिनेट अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर्स, दे आर कॉल्ड इजेशन। ठीक, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या क्या आ गया, एक तो इंजेशन, एक तो कौन सा हो गया, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सो you have to learn these all things. See, this is very important part of the life process, nutrition. So nutrition, in the last class that I had discussed the photosynthesis, nutrition in plants, and in the today's session nutrition in animals. So these are all processes you have to discuss. If you know, if you want the notes, then I will make a notes in the form of PDF and upload it. Okay. Now nutrition in amoeba. Which type of nutrition in amoeba occur? In amoeba, होलोजोइक न्यूट्रिशन अकर। कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है उसमें, होलोजोइक। ठीक है, अमीबा परफॉर्म होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया।
व्हाट इज होलोजेनिक न्यूट्रिशन? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सॉलिड या लिक्विड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है तो उसको क्या कहते हैं? होलोजेनिक न्यूट्रिशन। नाउ you can see the figure. In this figure, amoeba, first of all you have to know amoeba, body shape of amoeba is irregular. amoeba का जो body shape होता है वो irregular होता है. Why? Because amoeba, the outer covering of amoeba is made up of plasma membrane, because this is unicellular eukaryotic organism. Okay, this is unicellular eukaryotic organism. What is unicellular? When any animal have only one cell and all the activity, when any animal have one cell and all the activity performed by one cell, this is called unicellular organism. ओके, एक ही सेल द्वारा सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो इन अमीबा this outgrowth is called this one 1 2 3 4, this outgrowth is called pseudopodia. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है. सीटोपोडिया क्या है? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन. जैसे कि आप कोई ऐसा कोई सॉफ्ट मटेरियल ले लीजिए, जैसे रेजिन हो गया, जब उसको आप मोड़ते हैं तो आप वो किसी भी शेप में, रबड़ की तरह किसी भी शेप में क्या हो जाता है? खिंच जाता है. ओके, तो इसके अंदर जिधर साइटोप्लाज्म जाएगा उसकी बॉडी से उधर एक आउटग्रोथ निकल जाएगा. ठीक है, जैसे मान ली साइटोप्लाज्म इधर ज्यादा निकला है तो इसकी बॉडी से क्या हुआ? एक आउटग्रोथ निकल गया. तो ये आउटग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया जो होता है वो अमीबा के मूवमेंट में हेल्प करता है. किसमें? अमीबा के मूवमेंट में. जब अमीबा आगे बढ़ता है तो किसके मूवमेंट, किसकी वजह से आगे बढ़ता है? किसके वजह से लोकोमोशन करता है? बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. ठीक है, और क्या काम होता है स्यूडोपोडिया का? टू कैप्चर फूड. क्या करना? फूड को कैप्चर करना. तो देखिए, जैसे देखिए ये अमीबा है और इसका ये क्या है? न्यूक्लियस है. सपोज दैट इसके पास कोई फूड पार्टिकल आया. ठीक, फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है. ओके, तो ये सेंस कर रहा है. जैसे ही इसको पता चलेगा कि इसके पास कोई फूड मटेरियल है, वैसे ही इस एनिमल की स्यूडोपोडिया जो होती है वो इस तरह से हो जाएंगी, जैसे कप लाइक स्ट्रक्चर बना देगी और उसके अंदर क्या हो जाएगा? अमीबा जो है वो अंदर आ जाएगा. ठीक है, अमीबा को अपने अंदर घेर लेंगे. सॉरी, उसके अंदर जो फूड पार्टिकल है वह उसको कौन घेर लेगा? अमीबा का जो स्यूडोपोडिया. जैसे मान लीजिए ये दोनों स्यूडोपोडिया है, जैसे ही इसके अंदर कोई फूड आया वैसे ही ये दोनों क्या कर ली? इसको घेर ली. ठीक है, तो स्यूडोपोडिया क्या करता है? तो कैप्चर कर लेता है उस फूड को. जैसे ही फूड इसके बॉडी के अंदर आएगा वैसे ही इसके चारों तरफ जो फूड वैक्यूल्स होती हैं इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगी. कैसे? देखिए, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि अमीबा है, अमीबा के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के में जो भी एंजाइम्स होती हैं वो एंजाइम कहाँ आ जाती हैं? फूड वैक्यूल्स में. फूड वैक्यूल्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो आएंगे, वो क्या कर देंगे कि जो भी फूड इसके अंदर आया है वो डाइजेस्ट कर देंगे. जो भी अमीबा के अंदर फूड पार्टिकल आया है उसको क्या कर देंगे? डाइजेस्ट. ठीक है, ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट करके फिर से जो फूड वैक्यूल्स होती है वो अपने शेप में आ जाएंगे. नाउ दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्योंकि ये आपके बुक में मेंशन है. ठीक है, एनसीईआरटी में ये मेंशन है तो आपको अमीबा का जो न्यूट्रिशन है उसको पढ़ना है. तो अमीबा में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन. अमीबा परफॉर्म होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? स्टोमेटा पढ़ा, इसका फंक्शन पढ़ा. ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस किया हमने, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं. फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन एनिमल्स में कौन कौन से प्रोसेस होती हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ह्यूमन बींग में किस तरह से क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है. तो न्यूट्रिशन के दो पार्ट्स हैं, एक है एनिमल एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ओके, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती है. तो अभी तक हमने आपको इतना कुछ पढ़ाया. इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. देखिए, इस क्लास को हम इसके पहले भी लिए थे अभी. ठीक है, सेम सेम पार्ट हमने लाइफ प्रोसेस का सेम पार्ट मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया, बट ड्यू टू सम
प्रॉब्लम्स, ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी, इसकी वजह से हमको दोबारा से इसको डिस्कस करना पड़ा है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। और क्योंकि सेशन बहुत ही मेहनत से लिए जाते हैं, तो प्लीज आप उसको शेयर करिए। क्लास 10th के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 10th के जितने भी बच्चे हैं वो जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे क्लास से कनेक्ट हो सकते हैं। और इसको आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।